Hello everybody, welcome back to my channel Ad Infinitum by Ilsa Khan. If you're new to this channel, hey, I'm Ilsa Fatima. I deliver lectures on legal topics. So I would appreciate if you take a moment to subscribe my channel. Today I'll be dealing with defamation. First of all, I would like to define the term defamation. Defamation is basically an injury to a person's reputation which results from a statement which is false. As the reputation of a man is treated as his property. So if any offense is committed against his property, the person is liable. Similarly, if the injury is done to a man's reputation, then the person would be liable. So defamation is basically a statement which is false, which tends to deteriorate or hamper the reputation of a person. So what is defamation? I hope it's clear. Under section 499 of IPC, defamation has been defined. Under section 500 of IPC, the punishment of defamation has been prescribed. The punishment for defamation is a simple imprisonment of 2 years or fine or with both. Now I would be dealing with the essentials of defamation. The first very essential of defamation is that the statement must be defamatory. पहला essential क्या है कि statement ऐसा होना चाहिए which must be defamatory, which tends to deteriorate, which tends to lower the reputation of a person. मतलब वैसा statement होना चाहिए जो हैम्पर कर दे पर्सन के रेप्यूटेशन को, जो उसके पर्सन के रेप्यूटेशन को लोअर डाउन कर दे, वैसा स्टेटमेंट होना चाहिए. व्हाट इज द टेस्ट टू चेक दैट अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज डिफेमेटरी और नॉट? इट डिपेंड्स अपॉन कि हाउ द लाइक माइंडेड पीपल ऑफ द सोसाइटी टेक्स इट, कि वो कैसे लेते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट. द सिंपल टेस्ट टू चेक दैट वेदर अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज डिफेमेटरी और नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन how the like-minded people of a society takes that statement. So a person cannot defend that the statement was not intended to be defamatory. जो सामने वाला इंसान है वो डिफेंड नहीं कर सकता है कि मेरा जो इंटेंशन ऐसा नहीं था इसके रेप्यूटेशन को लोअर करने का. एक बार रेप्यूटेशन आपने लोअर कर दिया तो कर दिया कि डिफेमेशन है. You cannot take the plea कि your intention was not that, your intention was not to defame that person. तो ये कैसे टेस्ट किया जाता है, ये देखा जाता है कि कैसे लाइक माइंडेड पीपल ऑफ द सोसाइटी इसको कैसे ले रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं. ऑल्दो अगर कोई भी स्टेटमेंट किसी भी वजह से हो, आपका इंटेंशन नहीं देखा जाएगा, आपको ये देखा जाएगा कि लाइक माइंडेड पीपल ऑफ द सोसाइटी इस पर्टिकुलर चीज को कैसे ले रहे हैं. अगर केस की बात करें हम लोग राम जेठमलानी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी, इस केस में सुब्रमण्यम स्वामी ही वाज हेल्ड लायबल फॉर डिफेमिंग राम जेठमलानी. उन्होंने कहा था कि वो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लिया उन्होंने उनको बेल दिलाने का. फिर अभी एक रिसेंट केस हुआ था अरुण जेटली वर्सेस अरविंद केजरीवाल एंड 5 अदर्स. हाउएवर यहाँ पे ये लोगों को द मैटर वाज फ्रेंडली रिजॉल्व क्योंकि उन लोगों ने अपोलोजाइज किया था. तो आई वुड लाइक टू गिव एन इलस्ट्रेशन. सपोज ए पब्लिशेस एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, उसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन है कि दैट द कंपनी B has committed fraud, that the company B has committed fraud of ₹20 lakh. Suppose I have published a fake news in the newspaper that a particular company B has committed a fraud of ₹20 lakh. So it is defamatory. Why it is defamatory? Because first of all, the statement is false. Second thing is that it is lowering the reputation of the company B. So it must be noted that mere hasty expression spoken in anger or any vulgar abuse to which there is no hearer, it won't amount to defamation. मतलब कोई hearer होना चाहिए, कोई सुनने वाला होना चाहिए, कोई थर्ड पार्टी होना चाहिए. तो second thing is second essential. First essential क्या है? The statement must be defamatory. ठीक है. अगर मान लो कि suppose if an employer scolds an employee for not coming on time, तो it won't be defamation. ये defamatory नहीं है.
First of all, the statement must be defamatory. The second thing is that the statement must be referred to the plaintiff. Plaintiff को statement referred होना चाहिए. मतलब the action of defamation कब होगा कि जब statement जो है, जो complain कर रहा है, उसके ऊपर referred होना चाहिए. Plaintiff को defame किया जा रहा है, उसके ऊपर referred होना चाहिए, उसके लिए publish होना चाहिए. Then only the other person would be held liable. तभी तो defendant would be liable. अगर like suppose अगर if एक बैंक है, publishes a notice, the bank publishes a notice to all its branches, सारे branches में उन्होंने notice publish की कि वो लोन नहीं देंगे to any person from XYZ, as the people of XYZ के लोगों को वो लोन नहीं देंगे क्योंकि XYZ जो लोग होते हैं वहां से आते हैं वो रेगुलर डिफॉल्टर्स हैं, वो रिपीटेड डिफॉल्टर्स हैं, कभी भी रीपे नहीं करते हैं टाइम पे. इसके वजह से, इस स्टेटमेंट के वजह से बी ने लॉस सफर किया. बी भी XYZ का ही रेसिडेंट है, उसी अपार्टमेंट में रहता है, वहां का ही इंसान है, और बी को लॉस सफर करना पड़ा, ह्यूज लॉस सफर करना पड़ा. नाउ इन दिस केस, नाउ बी कैन होल्ड ए लायबल फॉर डिफेमिंग. ऑल्दो ये जो स्टेटमेंट था उसने डायरेक्टली नहीं बोला, बट इनडायरेक्टली द अदर पर्सन हैज सफर्ड लॉस, उसका रेप्यूटेशन भी लोअर हुआ, तो इट इज ऑल्सो डिफेमेशन. ये क्या था इस इलिस्ट्रेशन में? लाइक सपोज कि एक बैंक ने नोटिस पब्लिश किया अपने सारे ब्रांचेस में कि आप XYZ के रेसिडेंट को हम लोग लोन नहीं देंगे बिकॉज दे आर रिपीटेड डिफॉल्टर्स. उसके वजह से बी को लॉस सफर करना पड़ा क्योंकि वो भी XYZ का रेसिडेंट था. तो इट वुड बी डिफेमेशन. हियर इन दिस केस A would be liable for defamation. So there is one more case, TV Ramashankar Iyer versus AMA Mohindran. In this case, court held that the defendants liable for publishing a statement without any intention to defame would also be liable. यहाँ पे intention is not, मतलब इंटेंशन उतना नहीं है. अगर आपने किसी की रेप्यूटेशन को लोअर कर दिया देन यू आर लायबल फॉर डिफेमेशन. आपने भले डायरेक्टली बोला, इनडायरेक्टली बोला, इट डजंट मैटर. एक बार आपने किसी के रेप्यूटेशन को लोअर डाउन कर लिया, इट वुड बी डिफेमेशन. लाइक द स्टेटमेंट किसी ने बोला कि दैट अ पर्सन कैरिंग द बिजनेस ऑफ अगरबत्ती, जो भी बिजनेस ऑफ अगरबत्ती कैरी करते हैं, वो उन्होंने स्मगलिंग का ऑफेंस किया, आपने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया. तो प्लेंटिफ भी एक ऐसा इंसान था जो कि अगर सिमिलर बिजनेस, ही वाज आल्सो कैरिंग अ सिमिलर बिजनेस ऑफ अगरबत्ती. ही गॉट ऑफेंडेड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट हिज रेप्यूटेशन वाज आल्सो डैमेज्ड. तो ही फाइल्ड अ केस ऑफ डिफेमेशन. सेकेंड थिंग क्या होना चाहिए कि जो भी स्टेटमेंट है इट मस्ट बी डायरेक्टेड टू द प्लेंटिफ. थर्ड थिंग इज दैट द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश. स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए, इट मस्ट बी पब्लिश, कुछ थर्ड पर्सन के सामने पब्लिश होना चाहिए. द पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट इज मस्ट, मतलब किसी थर्ड पर्सन के टाइम उसका पब्लिकेशन होना चाहिए, कोई और उसको सुने. थर्ड पर्सन ने अगर रॉन्गफुली रीड कर लिया किसी चीज को, तब यहाँ पे ये चीज नहीं. अगर मान लो कि एक लेटर है जो किसी एक पार्टी के लिए है और उसने रॉन्गफुली गलती से रीड कर लिया, तब भी ऐसा हो सकता है कि माइट बी लायबल. लाइक सपोज इफ आई हैव सेंट अ लेटर टू अ पर्सन इन उर्दू और मुझे पता है कि सामने वाले इंसान को उर्दू पता नहीं होगी और उसमें ऐसी चीजें हैं जिससे उसके रेप्यूटेशन हम पर हो सकता है, एंड आई नो दैट कि ही वुड हैव टू टेक द हेल्प ऑफ अ थर्ड पर्सन उसको रीड करने के लिए. अगर उसके वजह से भी उसका रेप्यूटेशन हम पर होता है देन इट वुड बी डिफेमेशन. सिंपल सी बात कि मैंने एक लेटर लिखा उर्दू में और मुझे पता है मैं जिसको ये लेटर लिख रही हूँ उसको उर्दू नहीं आती है, उसको थर्ड पर्सन की हेल्प लेनी पड़ेगी ये लेटर समझने के लिए, और जिस थर्ड पर्सन ने पढ़ा तो उसके वजह से उसकी रेप्यूटेशन हार्म पर होगी, देन आई वुड बी लायबल फॉर डिफेमेशन. देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ डिफेमेशन, एक होता है स्लैंडर और एक होता है लाइबल. स्लैंडर क्या होता है? ये पब्लिकेशन होता है डिफेमेशन, डिफेमेटरी स्टेटमेंट इन ट्रांजिएंट फॉर्म, मतलब वर्ड्स के थ्रू या जेस्चर्स के थ्रू. और जो लाइबल होता है कि इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट इन अ परमानेंट फॉर्म, लाइक रिटन फॉर्म में, मतलब डिफेमिंग अ पर्सन थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन या कोई परमानेंट प्रिंटिंग, राइटिंग एक्सेट्रा, ये क्या हो गया? लाइबल हो गया. लेकिन अगर हम लोग इंडियन लॉ की बात करें तो इंडियन लॉ डज नॉट मेक एनी डिफरेंसेस बिटवीन लाइबल एंड स्लेंडर. बोथ आर ट्रीटेड एज एन ऑफेंस, दोनों एज एन ऑफेंस ट्रीट होता है. इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 500 ऑफ IPC. द पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन इज सिंपल imprisonment for 2 years or fine or both.
So एक केस भी था हिरबाई जहांगीर वर्सेस दिनशुएदी. इन दिस केस मुंबई और मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन लाइबल एंड स्लैंडर. So I hope the term defamation is clear. Defamation is also discussed under torts. Defamation is also a civil wrong. So I would like to discuss the other part in my next video. Hope you like this video. Do not forget to subscribe my channel, and if you have any queries or if you want me to upload video on any specific topic, do comment in the comment section below. Thank you.